Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem Dover Beach by Matthew Arnold. So Dover Beach, this is a lyric poem. What is a lyric poem? A lyric poem is a short expressive poem where the poet, he is trying to express his thoughts and feelings. This Dover Beach is a dramatic monologue. Again, what is a dramatic monologue? Dramatic monologue is a literary device where a character gives a long speech through his poem and what he wants to express. So Dover Beach was published in 1867 and the theme is nature, loss of faith in humanity and love. So Matthew Arnold was born on 24th December 1882 and he died on 15th April 1888. So in this poem he wants to say that he has lost the faith in humanity and how now he is feeling loneliness. So let's start the poem. So Dover Beach, this poem, the poet has written this poem when he had gone to a place. Dover Beach is a beautiful place, and when he had gone to Dover Beach, at that moment he has written that poem, and he had gone to that place to after his marriage to spend quality time with his wife, and we can say he has gone to that place for his honeymoon or whatever. So let's start the poem. So before I start the poem, those who are new to my channel, please do subscribe my channel. Let's start. The sea is calm tonight. So the poet is trying to say the sea is calm tonight. जो समंदर है वो समंदर बहुत शांत है. The tide is full, the moon lies fair. The tide is full means जो समंदर में जो टाइड्स आते हैं, जो लहरें आती हैं, वो उस समंदर में लहरें बहुत आ रही थी. The moon lies fair means beautiful. So the moon is beautiful. Up the straits on the French coast of the light. It is evening time and the light is dim, and the poet is trying to say it's a very beautiful evening. Gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast out in the tranquil bay. So gleams is gone and the cliffs of England, मतलब वो बोलना चाहते हैं जो इंग्लैंड में क्लिफ्स हैं. क्लिफ्स मीन्स हाई माउंटेन्स, जो पथरीले पहाड़ हैं वो इंग्लैंड में वो चमक रहे हैं. कैसे चमक रहे हैं? उस रोशनी से, चांद की रोशनी से वो चमक रहे हैं. ग्लिमरिंग एंड वास्ट मतलब बड़े बड़े, जो वो पत्थर हैं जो बड़े बड़े वो चांद की रोशनी में चमक रहे हैं. आउट इन द ट्रैंक्विल बे means near the poet is saying जो पहाड़ हैं वहाँ पे वो इतने सुंदर से चमक रहे हैं in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं come to the window, मतलब पोएट यहाँ पे किसी को विंडो के पास बुला रहे हैं. वो किसको बुला रहे हैं? वो अपने कंपेनियन को, अपने बिलविड को बोल रहे हैं कि तुम विंडो के पास आओ. He wants to show something maybe to her. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray. So वो कहना चाहते हैं आओ तुम विंडो के पास आओ और यहाँ से देखो. वो जो ब्यूटीफुल नज़ारा है, जो सीनरी है ब्यूटीफुल सी, उसको दिखाना चाहते हैं. Where the sea means moon's blanched land. तो यहाँ पे कहना चाहते हैं जो from the long line of spray, जो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं long line of spray का मतलब होता है जब ओशन में जब चांद की रोशनी पड़ती है, जो वेव्स आते हैं वो वेव्स चांद की रोशनी से वाइट होके सुंदर दिखता है और ऐसे लगता है वेव्स का एक लाइन हो गया है वहाँ पे. So that is the meaning. Where the sea means the moon blanched land. Sea means the moon blanched land मतलब blanched मतलब white color. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे जो धरती है, जो लैंड है, वो मून के वाइट, जो मून का जो शाइन होता है रात को तो वो वाइट कलर होता है. तो जो धरती है जो मून के कलर से वो पूरा वाइट हो गया है वहाँ पे. जो पूरा लैंड है वो मून की जो लाइट है उसके वजह से लैंड पूरा वहाँ पे वाइट हो गया है. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. Grating means rubbing. जब आप लोग देखोगे जो ओशंस होते हैं वहाँ पे जो बीच होते हैं, बीच में बालू भी होते हैं और पत्थर भी होते हैं. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं pebbles which the waves draw back. तो जब वेव्स आ रहा है शोर में तो वहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं. तो जब बीच और वो जो वेव्स और पेबल्स उसके ऊपर जब चढ़ जाता है तो उन दोनों के रब होते हैं वहाँ पे, तो एक साउंड आता है. तो पोएट उसको बोल रहे हैं द वॉइस इज ऑफ द पेबल्स एंड द वेव्स.
when they both meet and they make a rhythm, they make a rhythmic sound. तो पोएट उस साउंड के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे वेव्स आ रहे हैं और जा रहे हैं और वो पेबल से रब हो रहा है, जो पानी रब हो रहा है, तो वो एक रिदमिक साउंड क्रिएट कर रहा है. And they return up the higher stand, begin and cease and then again begin. तो पोएट ये कह रहे हैं वेव्स बार बार आ रहा है, शोर पे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और वो पेबल्स से टकरा रहे हैं. वो वाटर जो है, वेव्स और पेबल्स दोनों टकरा रहे हैं और बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. आ रहा है, जा रहा है, वेव्स जैसे बार बार आते हैं, जाते हैं. तो ये प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस प्रोसेस से जो म्यूज़िक निकल के आ रहा है वो एक रिदमिक नोट बना रहा है, वो एक रिदम की तरह वो बज रहा है. विथ ट्रेमेंडस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग. कैडेंस मीन्स रिदम. तो वही पोएट कहना चाहते हैं कि जो वो वेव्स है वो एक रिदम क्रिएट कर रहा है. द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इज Sophocles long ago had it on the Aegean and it brought. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं the eternal note of sadness is the process is eternal. Sadness here is not happy with the. तो यहाँ पे कह रहे हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो ये आ रहा है, जा रहा है. और सोफोक्लिस लॉन्ग अगो हर्ड इट इज एन एजियन. तो वो कहना चाहते हैं हज़ारों साल पहले जो ग्रीक के जो एक ये थे मैन थे, ब्रेव मैन थे सोफोक्लिस, उन्होंने भी सोफोक्लिस हैज़ ऑल्सो हर्ड दिस म्यूज़िक ऑन द एजियन सी. एजियन मीन्स एक सी है. तो वो कहना चाहते हैं हज़ारों साल पहले सोफोक्लिस ने भी ये म्यूज़िकल नोट एजियन के सी में सुना है. उनको भी यही म्यूज़िक, ये जो पेबल्स के जो रिदमिक नोट है, जो रिदमिक म्यूज़िक बज रहा है सी में, तो वहाँ पे एजियन सी में भी सोफोक्लिस ने ये नोट सुना था. इनटू हिज माइंड द टर्बड एब एंड फ्लो. एब एंड फ्लो का मतलब होता है वेव्स, जो ये वेव्स आ रहे हैं. of human misery we. After hearing the flow it reminds of human misery. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं ये जो वेव्स आ रहा है, जा रहा है, ये एक ह्यूमन इमोशंस के तरह है. ह्यूमन के जो हमारे जो लाइफ में, हमारे लाइफ में कितने सारे इमोशंस हैं. हम कभी सैड होते हैं, हम कभी दुखी होते हैं, हमारे लाइफ में कभी हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, ये होता है. लेकिन उससे हमारी लाइफ रुक नहीं जाती है. ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और हमारा लाइफ चलता रहता है. तो एग्जैक्टली यहीं पे पोएट ये बताना चाहते हैं हमारा लाइफ ये सी वेव्स की तरह है, जो वेव्स आता है, जाता है, और हमारी लाइफ कभी खुशी लाती है, कभी गम लाती है, पर किसी गम के वजह से, किसी सैडनेस की वजह से हमारी लाइफ रुक नहीं जाती, हमारी लाइफ चलती रहती है. Find also in the sound a thought hearing it by the distant northern sea. तो वो कहना चाहते हैं यही नोट, पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं यही नोट मैं यहाँ नॉर्दर्न सी में सुन रहा हूँ. जैसे सोफोक्लिस ने एजियन सी में ये नोट सुना था, मैं यहाँ पे नॉर्दर्न सी में, वो जहाँ पे अभी नॉर्दर्न सी में है, वो नॉर्दर्न सी में मुझे ये सुनाई दे रहा है. The sea of faith was once at the full and round earth shone, long like the folds of a bright girdle flowing. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे the sea of faith. तो पोएट now here refers to religion, faith, once the religious faith. जो हमारा ये वर्ल्ड है, जो हमारी ये अर्थ है, ये द पीपल आर कवर्ड इन, वो अपने माइंड में कितने फेथ लेकर हैं, कितने रिलीजियस फेथ, कितने ह्यूमन इमोशंस उनके माइंड में भरा हुआ है. जैसे लव, हेट्रेड, फियर, ये सब हमारे इमोशंस हैं. तो वो पोएट वही कहना चाहते हैं, वॉज वंस फुल द अर्थ शोन लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल. गर्डल का मीन्स होता है यहाँ पे अ बैंड, अ गोल्ड बैंड वोन राउंड द वेस्ट, जो कमरबंद जिसको बोलते हैं, जो सोने की कमरबंद जो डांसर्स लोग पहनते हैं और उनके कमर को वो पूरा कवर करता है, गर्डल पूरा कवर करता है जो कमर में पहनते हैं और वो डांस करते हैं. वैसे ही जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ में जो ये फेथ है, इसने पूरा सारे लोगों को, ये फेथ भी उनके माइंड में ऐसे ही भरा हुआ है. But now I only hear its melancholy long withdrawing roar. But now I only hear its melancholy. Melancholy means sad या painful things. Long withdrawing roar. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं पर यहाँ पे मुझे बस एक सैड, एक पेन सुनाई दे रहा है. रोर मीन्स लाउड पेन. बस यहाँ पे मुझे पेन और एक दुख भरी चीज़ सुनाई दे रही है. रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ. तो वो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अब जो दुनिया है, फेथ इज़ नाउ मूविंग बैक. जैसे
वो यहाँ पे हमारे कल्चर के फेथ को वो ये सी वेव से कंपेयर कर रही हैं। जैसे सी वेव्स आ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, वैसे ही हमारे दिलों से ये हमारा जो फेथ है, एक दूसरे के लिए जो प्यार है, लोगों के लिए जो कंपेनियनशिप होती है, वो हमारे दिलों से अभी कम होती जा रही है। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डज डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर, सी ऑफ फेथ इज गोइंग डाउन। तो वो कहना चाहते हैं जैसे वेव्स आ रहे हैं और पीछे पीछे चले जा रहे हैं, वैसे ही हम सब का फेथ भी अभी ह्यूमैनिटी से ऊपर से नीचे जा रहा है। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पीपल आर नॉट हैप्पी। सो नेकेड शिंगल्स मीन्स स्टोन्स। जैसे ही वो वेव्स पीछे चला जाता है, सी से वेव्स पीछे चला जाता है, तो जो शोर है वहाँ पे बस शिंगल्स रह जाते हैं, मीन्स पत्थर रह जाते हैं। वैसे ही जब प्यार इंसान ह्यूमन बीइंग से जब प्यार कम हो जाता है तो हेट्रेड ही बच जाती है। पीपल आर नॉट सर्टन अबाउट द थिंग्स, लोग अभी जो हैं वो बहुत अनसर्टन हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। दे आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। लव लेट अस बी ट्रू, तो लव मतलब यहाँ जो उनकी बिलवेड है, जो शुरू में उन्होंने अपने बिलवेड को बुलाया था, यहाँ पे भी वो अपने बिलवेड यानी वो कंपेनियन को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं लव लेट अस बी ट्रू। तो वो बोल रहे हैं चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रू रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से ट्रू रहें और अपना फेथ एक दूसरे के ऊपर हम कम नहीं होने देंगे। विच सीम्स to one another for the world which seems to lie before us like a land of dreams। तो वो कहना चाहते हैं my dear beloved, ये दुनिया हमारे लिए बहुत खूबसूरत है, हम दोनों के लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, चलो हम अब एक दूसरे के प्यार से इस दुनिया को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, जो उनकी जो प्यार की दुनिया है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू हैट, तो वो कह रहे हैं जो हमारी उनकी नई जो न्यू मैरिज हुई है, उनकी लाइफ शुरू हुई है और उनकी दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, हर चीज़ उनको नई लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, तो बट वो कह रहे हैं बट इन रियलिटी कोई भी रियल नहीं है, नाइदर जॉय नॉर लव। और इन लोगों की दुनिया में जब रियलिटी में हम जाते हैं, इनमें प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है। नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन सर्टनटी, नॉर पीस नॉर हेल्प नॉर पेन, तो लोगों में आजकल कोई सर्टनिटी नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, हर तरफ बस दर्द ही दर्द है, लोग दर्द में है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई हेल्पफुल नहीं है, कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर सर्टन नहीं है, मतलब कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, एवरीथिंग इज नेगेटिव हियर। एंड वी कैन हियर एज अ डार्कनिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड आर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड लाइट। सो पीपल आर फाइटिंग हियर फॉर एवरीथिंग, जो लोग हैं यहाँ पे हर चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी सर्टनटी नहीं है, हम जो वर्ल्ड ड्रीम कर रहे हैं और रियलिटी में वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। नथिंग इज फेयर हियर, एवरीथिंग इज डार्क अनसर्टन। Where ignorant armies clash by night, ignorant armies means here refers to people, जो लोग हैं यहाँ पे वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एवरीथिंग इज chaotic, लोगों के अंदर कुछ भी जो बोलते हैं प्यार मोहब्बत ये सब कुछ भी नहीं है। दे आर फाइटिंग एंड दे आर नॉट हैप्पी, देर इज नो इमोशंस, एवरीथिंग इज बेसलेस हियर। So this is the end of the poem, and what is the central theme of the poem is loss of faith in humanity. The basic thing is here is loss of faith in humanity. जो and love, जो प्यार इंसानों में होना चाहिए, जो विश्वास इंसानों में होना चाहिए, वो अभी इंसानों में दिखाई नहीं दे रहा है। Everything is vague and all the people are in disappointment and they are not happy. So this is the end of the poem. I hope आपको poem अच्छा लगा हो. Please click the like button and please do subscribe my channel. Thank you.